नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु और केरल के दौरे पर दोनों राज्यों को मिली हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। चेन्नई में सेना को सौंपा अर्जुन टैंक के उन्नत संस्करण मार्क 1A की चाबी। प्रधानमंत्री मोदी ने चेन्नई कार्यक्रम के दौरान ग्रैंड एनीकट कैनाल सिस्टम के विस्तार, पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण की रखी आधारशिला। ये कैनाल डेल्टा क्षेत्रों में सिंचाई के लिए है महत्वपूर्ण। इस नहर के आधुनिकीकरण पर 2640 करोड़ रुपए की आएगी लागत। विश्व दलहन दिवस के उपलक्ष्य में रोम में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री वर्चुअल हुए शामिल। कृषि मंत्री ने कहा कि विश्व का 23.62% दलहन उत्पादन होता है। भारत में 5 साल में 100 से ज्यादा उन्नत व अधिक उपज देने वाली प्रजातियां हुई विकसित। उन्नत बीजों दलहन की खेती में फोकस से बढ़ेगा किसानों का लाभ। वाराणसी बीएचयू के शोधार्थियों ने धान की भूसी से प्रदूषित जल को साफ करने का किया नवाचार। नदियों तालाबों के प्रदूषित जल को स्वच्छ बनाने में मिलेगी मदद। इस पहल में धान की भूसी का होगा भारी मात्रा में इस्तेमाल। किसान धान की भूसी को बेचकर भी बढ़ा सकेंगे अपनी आय। और हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में स्नो फेस्टिवल की धूम। रोजगार और आर्थिक मजबूती के लिए पारंपरिक संस्कृति को पर्यटन का हिस्सा बनाना है फेस्टिवल का मकसद। और खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु को विकास परियोजनाओं की कई सौगात देने चेन्नई पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। और प्रधानमंत्री मोदी ने चेन्नई कार्यक्रम के दौरान ग्रैंड एनीकट कैनाल सिस्टम के विस्तार, पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण की आधारशिला रखी। यह कैनाल डेल्टा क्षेत्रों में सिंचाई के लिए अहम है और इस नहर के आधुनिकीकरण पर 2640 करोड़ रुपए की लागत आएगी। Built across Kaveri River by the legendary Chora king Karikalam, Grand Anicut is one of the oldest dams in the world that has been in continuous use for nearly 2000 years. River Kaveri branches out into 3 tributaries as Kaveri, Kollidam, Venna. At Grand Anicut, the Grand Anicut Canal was built between the year 1928 and 1934. The length of the main canal is 148 kilometers and the length of the branch canal is 636 kilometers. The canal feeds 403 tanks and 2,27,472 acres of land in Tanjavur and Pudukkottai districts. Recognizing the need for water management, the Honorable Prime Minister has taken up a number of initiatives like Jal Jeevan Mission, Atal Bhujal Yojana and Linking Rivers of India. To improve the water efficiency of Kaveri canal systems, the Honorable Chief Minister has announced a number of schemes. Under this initiative, the modernization of Grand Anicut Canal has been taken up at a cost of rupees 2,640 crores. This includes lining of the main canal, reconstruction of 25 siphons, aqueducts, 109 well siphons, 131 under tunnels, 28 regulators and 20 bridges. Another highlight is the use of SCADA automation system technology at the cost of rupees 108 crores for technology-driven water management. The modernization program will increase water carrying capacity of Grand Anicut Canal by 20% after completion.
Thus, the legacy of the great Karikala Choram in water management is being continued under the dynamic leadership of the Honorable Prime Minister of India and the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu. 1000 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் தையூரில் அமையவுள்ள சென்னை ஐஐடியின் புதிய டிஸ்கவரி வளாகத்திற்கு மாண்புமிகு इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रैंड एनीकट कैनाल सिस्टम के विस्तार, पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण से यहां के किसानों को काफी लाभ पहुंचेगा। Friends, this program is special because we lay the foundation to modernize the 636 kilometers long Grand Anicut canal system. The impact of this is going to be very big. It will improve irrigation facilities for 2.27 lakh acres of land. District of Tanjavur and Pudukkottai will gain specially. प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के किसानों द्वारा रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन की सराहना की और साथ ही खेती में पानी के महत्व को समझाते हुए प्रति बूंद अधिक फसल के मंत्र को भी साझा किया। I want to appreciate the farmers of Tamil Nadu for record food grain production and good use of water resources. For thousands of years, this Grand Anicut and its canal systems have been the lifeline of the rice bowl Tamil Nadu. The Grand Anicut is a living testimony to our glorious past. It is also an inspiration to our nation's Atmanirbhar Bharat goals. In the words of the famous Tamil poet Avaiyar, Varappu uyara neer uyarum, neer uyara nel uyarum, nel uyara kudi uyarum, kudi uyara kol uyaram, kol uyara kon uyarvan. When water level rises, cultivation rises. People prosper and the state prosper. We have to do whatever we can to conserve water. This is not only a national issue, it is a global subject. Always remember the mantra of per drop, more crop. प्रधानमंत्री ने कहा कि मछुआरों के लिए सरकार ने इस बजट में काफी प्रावधान किया है, इससे मछुआरों को आने वाले दिनों में भी काफी लाभ पहुंचेगा। India is proud of our fishermen communities. They are symbol of diligence and kindness. In the budget, there are provisions to ensure extra credit mechanism for fishermen. Infrastructure relating to fishing is being upgraded. Modern fishing harbor will come up in 5 centers, including Chennai. We are optimistic about seaweed farming. This will improve lives of coastal communities. For seaweed cultivation, a multi-purpose seaweed park will come up in Tamil Nadu. और अब बात करेंगे दलहन की। देश भर में दलहन का जो रकबा है वो बढ़ रहा है और विश्व में भारत दलहन उत्पादन में नंबर 1 पे है, यानी कि अग्रणी है। विश्व दलहन दिवस के उपलक्ष्य में रोम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वर्चुअल रूप से इसमें शामिल हुए और में विश्व भर के कई कृषि मंत्री इसमें शामिल हुए। विश्व का 23.62% दलहन उत्पादन भारत में होता है, ये केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा। भारत दुनिया में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है।
5 साल में 100 से ज्यादा उन्नत व अधिक उपज देने वाली प्रजातियां देश भर में विकसित की गई ताकि उत्पादन क्षमता बढ़ सके। भारत ने दलहन में लगभग आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है क्योंकि हम बफर स्टॉक कर रहे हैं। उन्नत बीजों दलहन की खेती में नए क्षेत्र लाने वाले बाजार पर फोकस से बढ़ेगा किसानों का लाभ। भारत ने दलहन उत्पादकता को 140 लाख टन से बढ़ाकर 240 लाख टन कर लिया है। वर्ष 2016 के संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुरूप यह विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। गरीबी, खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य और पोषण की चुनौतियां अहम है। इसके साथ साथ खाद्य सुरक्षा के समाधान करने में दलहन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। काफी प्रोटीन वाली फसल होती है। सतत विकास लक्ष्यों व भूख मुक्त विशेष के निर्माण के लिए परिचर्चा आयोजित की गई, यानी कि चर्चा का विषय रहा भविष्य की वैश्विक खाद्य सुरक्षा, पोषण और जरूरतों के पूरा करने में दलहन की प्रामाणिकता पर बल दिया गया। पौष्टिक खाद्यान्न व प्रोटीन से भरपूर होने से दलहन फूड बास्केट के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत में दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्तमान पहल, मांग और आपूर्ति के अंतराल को पाटने का प्रयास किया गया। भारतीयों के एक बड़े वर्ग की दलहन से प्रोटीन की आवश्यकता पूरी की जाती है। भारत में 86% छोटे व सीमांत किसान हैं, ये केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा। दलहन के क्षेत्र में सहायता के लिए एफपीओ को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ साथ भारत सरकार देश में 10,000 नए एफपीओ बनाने जा रही है। इसका फायदा किसानों को मिलेगा जिन पर 5 साल में 6,850 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बीज उत्पादन, खरीद व बेहतर प्रौद्योगिकियों तक पहुंच के लिए किसानों को सामूहिक रूप से सक्षम बनाया जा रहा है। मृदा स्वास्थ्य के साथ साथ भारत सरकार प्रति बूंद अधिक फसल को उच्च प्राथमिकता दे रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भी अनुसंधान व विकास से दलहन उत्पादन में वृद्धि में मदद की, यानी कि नवाचार होते रहे हैं। दलहनी फसलों के शोध को नई दिशा मिली है और नई उन्नत प्रजातियां भी विकसित की गई हैं। इसका फायदा किसानों को मिल रहा है। 5 वर्षों में ही 100 से ज्यादा उन्नत व अधिक उपज देने वाली प्रजातियां विकसित की गई हैं। सरकार उन्नत किस्मों के बीजों दलहन की खेती पर फोकस कर रही है। भारत में राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत दलहन आंगनबाड़ी केंद्रों में भी वितरित की जाती है ताकि प्रोटीन वहां तक पहुंच सके। गर्भवती व नवप्रसूता माताओं एवं शिशुओं के पोषण व स्वास्थ्य के लिए करीब 1.25 करोड़ केंद्र बनाए गए हैं देश भर में। वर्ष 2020 में कोविड महामारी के दौरान सरकार ने 80 करोड़ लोगों को दलहन साबुत दालों की आपूर्ति की है। कोविड के दौरान भारत विश्व में खाद्य पदार्थों के वैश्विक निर्यातक आपूर्तिकर्ता के रूप में उभर कर सामने आया है। इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री ने कहा कि खेती किसानी के विकास के लिए सरकार चौतरफा उपाय करे ताकि किसानों की आय बढ़ाई जा सके। पीएम किसान सम्मान निधि द्वारा किसानों के बैंक खातों में 1.15 लाख करोड़ रुपए अब तक स्थानांतरित किए जा चुके हैं। और अब बात करेंगे एक नए नवाचार की। उच्च शिक्षा समाज और देश के काम आए, ऐसा ही एक शोध किया है बीएचयू आईआईटी के एक शोधार्थी ने, जो गंगा और कई नदियों की सफाई के काम आएगी। पेश हमारे संवाददाता हरकेश बहादुर सिंह गौतम की ये खास रिपोर्ट। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अपने शोध के लिए जाना जाता है और उस ख्याति में 4 चांद लगाया बीएचयू आईआईटी के बायोकेमिकल डिपार्टमेंट के शोधार्थियों ने। इन शोधार्थियों ने धान की भूसी से प्रदूषित जल को साफ करने का नवाचार किया है, जिससे नदियों तालाबों के प्रदूषित जल को स्वच्छ बनाने में मदद मिलेगी। ये उपलब्धि हमारी बड़ी नदियों जैसे गंगा, यमुना और कई नदियों की साफ सफाई में मददगार साबित हो सकेगी। धान की भूसी को हम आयरन से डोपिंग करते हैं, उसके बाद इसको वेस्ट वाटर में डालते हैं, जिससे थोड़ी देर में पूरी तरह से क्रोमियम को रिमूव कर देता है वेस्ट वाटर से। बीएचयू के इस विभाग के सहायक प्रोफेसर और शोध निर्देशक ने बताया कि गंगा की सफाई के लिए उन्नाव कानपुर के बीच गंगा में इसका प्रयोग किया जाएगा, जिसके बाद बड़े पैमाने पर प्रदूषित जल को साफ करने का अभियान चलाया जाएगा। शोधकर्ताओं की इस पहल में धान की भूसी का प्रयोग भारी मात्रा में होगा। इससे किसानों को भी सीधा लाभ पहुंचेगा। किसान धान की भूसी को बेचकर भी अपनी आय बढ़ा सकेंगे। इसका सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन गंगा जी के पानी में उन जगहों पे है जहाँ पे क्रोमियम का पोल्यूशन हो रहा है, जैसे कि उन्नाव कानपुर बॉर्डर में जो बेल्ट है गंगा जी की, उसमें क्रोमियम काफ़ी मात्रा में आता है आसपास के इंडस्ट्रियल यूनिट से। तो उसमें इसको हम कर सकते हैं, एक फिक्स बेड बनाकर नदी के बीच में इसको पैक करके एड्जॉर्बेंट को रखा जा सकता है, और जो भी जल इससे फिल्टर होकर आगे बढ़ेगा, इसको टच करके आगे बढ़ेगा, उसका क्रोमियम 6 क्रोमियम 3 में कन्वर्ट होकर नदी में इस एड्जॉर्बेंट के ऊपर चिपक के निकल आएगा। दूसरी बात यह कि इस एड्जॉर्बेंट को कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है, लगभग कुल मिला के 5 साइकिल्स तक। तो इससे इसकी खर्चा और खपत और भी कम हो जाती है। इससे हमारे जो किसान भाई हैं जिनके पास धान की भूसी काफ़ी मात्रा में निकलती है जिनके खेतों से, उनको भी काफ़ी मदद मिलेगी। वो इस धान की भूसी को एक मास स्केल पे इंडस्ट्रियल सेक्टर परचेज करके इस एब्जॉर्बेंट को डेवलप कर सकता है, और जिस तरह से देश के कृषि को भी एक लाभ
मिल सकता है। इस तरह के शोध ही शिक्षा का मान बढ़ाते ही हैं, साथ ही आम जन के जीवन के लिए भी उपयोगी साबित होते हैं। BHU IIT के बायोकेमिकल डिपार्टमेंट के शोध का फायदा सीधे गंगा जी को मिल रहा है। गंगा जी को स्वच्छ करने में ये जो शोधार्थी हैं, इनकी यह प्रक्रिया, इन्होंने जो शोध किया है वह तो काम आएगा ही, साथ ही किसानों की आय बढ़ाने में भी भूमिका निभाएगा, क्योंकि यह सफाई धान की भूसी से होगा। धान जो किसान पैदा करते हैं और जब उसकी खरीद होगी इस काम में, तो उन्हें निश्चित रूप से आय का फायदा होगा। कैमरा पर्सन अजय सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़ वाराणसी। तो देखा आपने कि एक नए नवाचार से दोहरा लाभ मिलेगा, जहां एक तरफ देश भर की नदियां साफ होंगी, तालाबों को साफ किया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ जो किसान हैं उनकी जो भूसी है वो बेच सकेंगे और उनकी अपनी आय जो है वो बढ़ा सकेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए किसान समाचार। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ DD किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा। देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे पर्यटन और रोजगार की। स्नो फेस्टिवल के तहत लाहौल और स्पीति जिले में इन दिनों स्नो फेस्टिवल की धूम मची है। यहाँ सगनम गांव में आयोजित स्नो फेस्टिवल का उद्देश्य लाहौल स्पीति की संस्कृति को पर्यटन के साथ जोड़ना है। लाहौल और स्पीति जिले में इन दिनों स्नो फेस्टिवल की धूम मची है। सगनम गांव में स्नो फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लाहौल स्पीति की परंपरा, रीति रिवाजों और संस्कृति को देश विदेश के सैलानी से रूबरू करवाना है और यहाँ की संस्कृति को पर्यटन का हिस्सा बनाना। लाहौल और स्पीति का हर गांव इस फेस्टिवल में हिस्सा ले रहा है। इस कार्यक्रम में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि स्नो फेस्टिवल का उद्देश्य यहाँ की संस्कृति को पर्यटन का हिस्सा बनाना है ताकि हमारे लोगों को रोजगार मिले और उन्हें आर्थिक मजबूती मिले। उन्होंने कहा कि लोगों ने कम समय में काफी बेहतरीन कार्यक्रम आयोजित किए और यहाँ की प्रदर्शनी में हर वस्तु आकर्षक और मनमोहक है। यहाँ के कलाकारों ने हाथी नृत्य, टशी नृत्य, खर नृत्य पेश किया, तो वहीं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सगनम के छात्रों ने फैशन शो और लोक नृत्य पेश किया। इसके अलावा तीरंदाजी और पारंपरिक वस्तुओं की प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। यहाँ छंगफुत, लोसर, छंका, भुचेन, दाछंग, नमगेन जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। ऊन से पुराने समय में महिलाएं कपड़े कैसे बनाती थीं, ये प्रदर्शनी का अहम हिस्सा रहा। स्नो फेस्टिवल से लाहौल के पर्यटन को संजीवनी मिलेगी और समृद्ध संस्कृति को बढ़ावा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।
इसके साथ ही दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम में पर्यटकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। पिछले कुछ वर्षों से कश्मीर के अशांत माहौल और कोविड-19 की वजह से यहाँ का पर्यटन पूरी तरह से प्रभावित था, जिसके कारण होटल, टूर एंड ट्रेवल्स ऑपरेटर, हाउस बोट के मालिक, टैक्सी ऑपरेटर समेत कई लोगों को रोजगार के नजरिए से भारी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अब घाटी में सामान्य हालात और बर्फबारी के कारण बेखौफ होकर यहाँ लोग आ रहे हैं। पहलगाम विकास प्राधिकरण के अनुसार दिसंबर में हुई बर्फबारी के बाद जनवरी में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई और पिछले साल की सर्दियों के मौसम के साथ इस मौसम की तुलना करें तो पर्यटकों की भीड़ बेहतर है। पिछले 10 दिन से पर्यटकों की भीड़ बढ़ गई है और अगर यह तेजी आगे भी जारी रही तो पहलगाम में सर्दियों के दौरान पर्यटकों के आने का 3 साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा। और अब देखते हैं कि कैसा रहेगा किसानों के लिए मौसम का हाल और इस बदलते मौसम में किसान कैसे करें खेती।